ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 27 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, Telegram, Facebook, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਰਟੇਡਮ ਡੇ ਆਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 9ਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਟੇਡਮ ਡੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 26 ਨਵੰਬਰ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 400ਵੀਂ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਡੇ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ 1949 ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 59th ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵੀਕ। 59th ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵੀਕ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਫਰੰਟ ਹੈਲਥ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਫਰੰਟ ਹੈਲਥ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਿਊ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੈਕਸ ਫॉर ਪੋਸਟ ਕਰੋਨਾ। ਨਿਊ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੈਕਸ ਫॉर ਪੋਸਟ ਕਰੋਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? G20 ਦੁਆਰਾ, G20 ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਊ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੈਕਸ ਫॉर ਪੋਸਟ ਕਰੋਨਾ। ਨੈਕਸਟ DRDO ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਸਾਈਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਫਾਇਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਲੈਂਡ ਵਰਜ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਰੀਜਨਲੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਂਜ ਇਸ ਦੀ 290 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, 290 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ 400 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਰੀਜ਼। ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੌਨ ਬੈਸਟ ਡਰਾਮਾ ਸੀਰੀਜ਼। ਐਮੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਮੀ ਅਵਾਰਡ ਦਾ 45th ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਿਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਫੋਰਸਾਮਾ ਸੀਰੀਜ਼, ਸੀਰੀਆ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਬੈਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਬਿਲੀ ਬੈਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਡ ਇਨ ਹੈਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਡ ਇਨ ਹੈਵਨ ਦੇ ਲਈ ਐਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜੁਨ ਮਾਥੁਰ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਦੇ ਲਈ, ਅਰਜੁਨ ਮਾਥੁਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਰੈਂਕ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਇਨ ਨਾਈਟ ਫਰੈਂਕ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ? 27th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੰਬਈ ਔਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ 33rd ਔਰ 34th ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਕਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ
स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क ने वर्ल्ड के सैकेंड रिचेस्ट परसन बन चुके हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग्स रिपोर्ट। बिल गेट्स नूं क्रॉस करके ये सैकेंड रिचेस्ट परसन बन गए। विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन नूं नॉमीनेट किया गया ICC प्लेयर ऑफ द डेकेड के लिए। इसे दे नाल विराट कोहली, MS धोनी और रोहित शर्मा नूं नॉमीनेट किया गया मेन्स ODI प्लेयर ऑफ द डेकेड के लिए। ग्रैग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड तो बिलोंग करते हैं, इन्हों अपॉइंट किया गया चेयरमैन ICC का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। ICC के नवे चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं न्यूजीलैंड के ग्रैग बार्कले। 1909 के इन्हों बनाया गया सी ICC नूं। दुबई UAE दे विच हैडक्वार्टर है। CEO का नाम याद रखना है मनु साहने कौन ने? CEO ने ICC दे। नेक्स्ट है UN जनरल असैंबली द्वारा फिलिपो ग्रैंडी नूं हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया रेफ्यूजीज़ के लिए हाई कमिश्नर कौन अपॉइंट किए गए हैं? फिलिपो ग्रैंडी। नेक्स्ट है विली वॉल्श ने जिहड़े CEO सीगे इंटरनेशनल एयरलाइन ग्रुप के, इन्हों डायरैक्टर जनरल अपॉइंट किया गया इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसीएशन इन प्लेस ऑफ अलेक्जेंडर डी जुनियक। ये जिहड़े परसन ने इन्हों की रिटायरमेंट होनी है, इन्हों की टर्म है जी खत्म होनी है 2021 मार्च 2021 के विच। उस तो बाद चार्ज दिता जाएगा विली वॉल्श नूं और फिलिपो ग्रैंडी का नाम भी याद रखना है। इन्हों हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ के लिए री इलैक्ट किया गया नैक्सट 2.5 ईयर की टर्म के लिए। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक PNB मेटलाइफ इंश्योरेंस के नाल पार्टनरशिप कर रहा है टू लॉन्च PM जीवन ज्योति बीमा योजना। प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना के अंडर पार्टनरशिप की है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। MD and CEO ने J वेंकटा रामू रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं और न्यू दिल्ली के विच इसका हैडक्वार्टर है। नेक्स्ट है स्कॉटलैंड द्वारा पहली हाइड्रोजन पावर्ड डबल डेकर बस चलाई गई। स्कॉटलैंड द्वारा पहली चलाई गई है। स्कॉटलैंड कैपिटल एडिनबर्ग है, करेंसी इत्थे पाउंड चलती है। वैसे UK का पार्ट है, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया। तो इस दे विच जिहड़ा एडिनबर्ग स्कॉटलैंड की कैपिटल। नेक्स्ट है USA द्वारा फर्स्ट कोविड-19 टेस्टिंग किट, पहली कोविड-19 टेस्टिंग किट डेवलप की गई है होम यूज़ के लिए। अप्रूवल दी गई है 30 मिनट के विच यह रिजल्ट प्रोवाइड कर देगी और इसनूं डेवलप किया गया लूसीरा हेल्थ द्वारा। चाइना की गल करते हैं। चाइना द्वारा इलीगली भूटान का एरिया कैप्चर किया गया है एंड डेवलप्ड अ विलेज नेम्ड पांगडा विलेज उत्थे बनाया गया। ठीक है जी, समथिंग 2.2 किलोमीटर का कुछ एरिया सीगा जिसनूं कैप्चर करके इन्हां द्वारा एक विलेज उत्थे स्थापित कर लिया गया पांगडा। ईरान द्वारा एक साइक्लोन का नाम दिता गया नेवर साइक्लोन का नाम दिता गया सी जिहड़ा कि इंडिया दे विच आ रहा है, इंडिया के पौंडीचेरी और तमिलनाडु दे विच। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जिहड़ा कित्थे है UP दे विच। इस द्वारा एक अवार्ड दिता गया T/2 अवार्ड यानी कि टाइगर की पॉपूलेशन नूं डबल करने के लिए इन्हों इस अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया। बेसिकली 2014 के इत्थे 25 टाइगर सीगे, हुण उन्हां दी पॉपूलेशन 2018 के 65 हो गई सी। इस पॉपूलेशन नूं इंक्रीज़ करने के लिए UP के पीलीभीत टाइगर रिजर्व नूं T/2 अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया। नेक्स्ट है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने इन्होंने इंडिया नूं रिप्रजेंट किया अफगानिस्तान 2020 कॉन्फ्रेंस दे विच। अफगानिस्तान 2020 कॉन्फ्रेंस दे विच रिप्रजेंट किया। अफगानिस्तान प्राइम मिनिस्टर कौन ने? अशरफ घनी ने। यह याद रखना है। इंडिया द्वारा 2 बिलियन इन्वेस्टमेंट के लिए कमिट किया गया है। इस तो इलावा सुब्रमण्यम जयशंकर ने जिहड़े बहरेन, UAE और सियाचिन की विजिट से भी जाएंगे। ठीक है जी, एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी है अफगानिस्तान का, उसके बारे भी डिटेल से डिस्कस करांगे जिसनों इंडिया डेवलप करेगा। ठीक है, कल अपना स्किप हो गया सी, अज आप उसनों डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार प्रज्ञा
प्रोग्राम नू इनीशिएटिव नू रिवील किया लॉन्च किया गया नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। इस तो इलावा फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री भी नरेंद्र सिंह तोमर लवे है, इन्हों द्वारा इनोग्रेट किया गया सुखजीत मैगा फूड पार्क, सुखजीत मैगा फूड पार्क एट फगवाड़ा कपूरथला डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। नैक्सट है फर्स्ट किसान रेल, वैसटर्न रेलवे की पहली किसान रेल 180 टन के ऑनियंस लैके इंदौर MP तो जारी है गुवाहाटी असम दे विच, इंदौर MP तो जारी है गुवाहाटी असम दे विच। वैस्ट बंगाल गौरमेंट की गल करते हैं तो 2 स्कीम्स लॉन्च की गई ने, दुआरे दुआरे पश्चिम बंगा सरकार, दुआरे दुआरे पश्चिम बंगा सरकार, और दूसरी है करमल धर्मा स्कीम। 2 स्कीम्स कितने दियां ने ये वैस्ट बंगाल दियां। हिमाचल प्रदेश गौरमेंट की गल करते तो हिम सुरक्षा अभियान लॉन्च किया गया कोविड-19 के दौरान लोगों को सैंसिटाइज करने के लिए, अवेयर करने के लिए। नैक्सट चलते हैं स्टैटिक पोर्शन के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्कस कर रहे हैं। तो मणिपुर के खोंगचेंग गांबा चिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लोकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मेघालय की गल करते हैं बगमारा पिक्चर प्लांट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काफ़ी इंपोर्टेंट, बगमारा पिक्चर प्लांट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस तो इलावा नरपू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मेघालय के। मिजोरम के टोकालो, तावी, नैंगफुई और लैंगटैंग, टोकालो और तावी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिजोरम के। नागालैंड फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पुली बैज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रंगा पहाड़ और फकीम इंपोर्टेंट बनेगी नागालैंड के। फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुली बैज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखनी है। नैक्सट चलते हैं स्टैटिक पोर्शन अज की न्यूज़ के वाल। अज की न्यूज़ के सब तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करांगे, विच डे इज़ ऑब्जर्वड एज नैशनल मिल्क डे। फर्स्ट क्वेश्चन है नैशनल मिल्क डे के उत्ते कि मिल्क डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया। मिल्क डे नू 26 नवंबर नू ऑब्जर्व किया गया। बेसिकली डॉक्टर कुरियन दी बर्थ एनिवर्सरी नू ऑब्जर्व करने के लिए हर साल इंडिया 26 नवंबर नू नैशनल मिल्क डे ऑब्जर्व करता है। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं ऑपरेशन फ्लड भी मिल्क की प्रोडक्शन के रिलेटेड ही है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन फ्लड इज़ रिलेटेड टू, ठीक है, जिस तरीके नाल ग्रीन रेवोल्यूशन है जी, ये किस दे नाल रिलेटेड है, ये प्रोडक्शन ऑफ व्हीट के उत्ते है। तो सिमिलर तरीके दे नाल ऑपरेशन फ्लड है जिहड़ा ये किस दे नाल रिलेटेड है, मिल्क की प्रोडक्शन के उत्ते। इस तो इलावा वर्ल्ड दे विच मिल्क की प्रोडक्शन के भी सब तो अगे किहड़ी कंट्री है, इंडिया है। ठीक है जी, ये फैक्ट्स याद रखने। बाकी अगर आप गल करिए 26 नवंबर को हमने आप डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन डे या नैशनल लॉ डे ऑब्जर्व किया गया। इसके रिलेटेड एक इंपोर्टेंट इनोग्रेशन की गई है। उसके इनोग्रेशन नहीं कहेंगे, अनवील कहेंगे, एक प्रोग्राम अनवील किया गया, डॉक्यूमेंट्री अनवील की गई है, उसके बारे भी डिस्कस करांगे। सब तो पहले चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वाल। इस तो इलावा बाकी दिन ने जोड़े ये भी याद रखने ने। फॉर एग्जाम्पल टॉयलेट डे आप डिस्कस किया 19 नवंबर को। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं 21 नवंबर को भी अपन एक इंपोर्टेंट डे डिस्कस किया 21 नवंबर को फिशरीज़ डे, जिसके रिलेटेड अपने अवार्ड डिस्कस किए थे। फिशरीज़ डे भी आप डिस्कस किया। इस तो इलावा टैलीविजन डे, वर्ल्ड टैलीविजन डे भी डिस्कस किया। फिशरीज़ के प्रोडक्शन के वैसे टॉप कर दी है तमिलनाडु। रिसेंटली फिशरीज़ के फील्ड के डिफरेंट अवार्ड भी दिते गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपी इनलैंड स्टेट के उड़ीसा को दिता गया सी कोस्टल स्टेट के, और असम नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अवार्ड दिता गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ने जोड़े इंपोर्टेंट पॉइंट्स याद रखने ने। नैक्सट है हु इज़ नॉमिनेटेड फॉर नोबल पीस प्राइज़ 2021। सोनू याद होएगा आप डिस्कस किया कि जोड़े USA के प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की कराया, इब्राहिम अकॉर्ड साइन कराया सी। इब्राहिम एकॉर्ड साइन कराया। इब्राहिम एकॉर्ड USA द्वारा 2 कंट्रीज़ के साइन कराया गया। किहड़ी 2 कंट्रीज़, एक तो होया इजराइल और दूसरी सी UAE। ठीक है, दोनों द्वारा साइन किया गया। तो इस एकॉर्ड को साइन कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया गया सी नोबल पीस प्राइज़ के लिए। ठीक है, हुण
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਔਰ UAE ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਨੇ? ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੈਤਨਯਾਹੂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਔਰ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਈਦ ਅਲ ਨਹੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਐਕੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ UAE ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਇਹੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਹਿਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਐਕੋਰਡ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੋਰਡਨ ਔਰ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ UAE ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ which edition of National Science Film Festival organized virtually? National Science Film Festival organize ਕੀਤਾ ਗਿਆ 10ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ 10th ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਗਾ, ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਚੁਅਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਵੈਨਿਊ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਰਚੁਅਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਨਿਊ ਵੀ ਤਾਂ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੈਨਿਊ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ-19। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ 10th ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ 9th ਐਡੀਸ਼ਨ। ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 9th ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਮੂਵੀ ਇਜ਼ ਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਫॉर 93rd ऑस्कर ਅਵਾਰਡਸ। ऑस्कर ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 93rd ਐਡੀਸ਼ਨ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ 93rd ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਲੀਕੱਟੂ ਮੂਵੀ ਨੂੰ 93rd ऑस्कर ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਸਕਰ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਸਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਲੀਕੱਟੂ ਇਹ ਚੌਥੀ ਐਸੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਐਸੀ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੋਰਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਐਸੀ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਲਗਾਨ, ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਸਲਾਮ ਬੰਬੇ, ਇਹਨਾਂ 3 ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਔਸਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਔਸਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਟਖਟ ਮੂਵੀ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨਟਖਟ ਮੂਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਮੂਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਬਾਲਨ ਦੁਆਰਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਵਿਆਸ। ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 92nd ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 92nd ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਮੂਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਮੂਵੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਮੂਵੀ ਸੀ। ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਮੂਵੀ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ਸ ਅ ਬੁੱਕ ਔਨ ਦ ਲਾਈਫ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਉਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੁੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਆਥਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?
तो उसके ऑथर ने किरपाल सिंह द्वारा इस बुक ਨੂੰ लिखिया गया है और इस बुक ਨੂੰ रिलीज़ किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है जी, मूवी किन्ना द्वारा बुक किन्ना द्वारा रिलीज़ की गई है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। अच्छा, शशि थरूर की एक बुक की आप गल की सी, इस बुक ਨੂੰ रिसेंटली लॉन्च किया गया द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। अच्छा, शशि थरूर का नाम इंपोर्टेंट क्यों है कि शशि थरूर ਨੂੰ एक अवार्ड दिता गया ਸੀ। शशि थरूर ਨੂੰ साहित्य अकैडमी अवार्ड दिता गया ਸੀ हिंदी ਦੀ फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ। हिंदी के फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ आई थिंक इन्हों की बुक का नाम सी छीलते हुए अपनों को, नहीं सॉरी हिंदी के फील्ड के नहीं, हिंदी के फील्ड के दिता गया सी आनंद किशोर नूं, आनंद किशोर नूं इन्हों दिता गया सी इंग्लिश के लिए। शशि थरूर नूं इंग्लिश के लिए दिता गया सी मेरे माइंड चो नाम स्किप कर रहा है, एन एरा ऑफ डार्कनैस के लिए, एन एरा ऑफ डार्कनैस बुक के लिए अवार्ड दिता गया सी शशि थरूर को। नाम याद रखना इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा अनुपम खेर की गल करते हैं, इन्हों की तीसरी बुक रिलीज़ की गई योर बेस्ट डेज टूडे, याद रखनी है। विजय लोकापाली द्वारा रिसेंटली जी बुक लिखी गई सी रोहित शर्मा की लाइफ स्टोरी द हिटमैन बुक रिलीज़ की गई। जुगल हंसराज द्वारा जी बुक लिखी गई सी, उस बुक का नाम सी द कावर्ड एंड द स्वॉर्ड, द कावर्ड एंड द स्वॉर्ड। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्ड मर्जर ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक विद DBS बैंक इंडिया लिमिटेड। वैसे ये न्यूज़ की अगर आप गल करते हैं, इसनों फाइनली अप्रूवल अज दी गई है। अज 27 अगर आप गल करते 27 है तो अज तो इसनों शुरू किया जाएगा, मर्जर है जोड़ा अज तो फाइनली इंप्रोवाइज किया जाएगा। पर इस दे बारे गल्लां काफ़ी पहले तो चल रही सी और अप्रूवल नहीं दी गई सी, फाइनल अप्रूवल आनी बाकी सी। फाइनल अप्रूवल आ चुकी है कि जो लक्ष्मी विलास बैंक है, आप डिस्कस किया सी कि इस दे उत्ते RBI द्वारा रोक लगाई गई सी ट्रांजैक्शनस के उत्ते। अगर आप गल करते हैं लिमिट भी कढ़ा दी गई सी कि आई थिंक 25,000 कुछ लिमिट कर दी गई सी। हुण इसनूं मर्ज किया जा रहा है DBS बैंक इंडिया लिमिटेड दे नाल। DBS बैंक है जिहड़ा ये सिंगापुर का एक बैंक है, फॉरन बैंक है। इसकी जी सबसिडरी है इंडिया दे विच DBS बैंक इंडिया, उस दे नाल मर्ज किया जा रहा है लक्ष्मी विलास बैंक नूं। ठीक है, तो याद रखांगे इंपोर्टेंट रहेगा हैडकुआटर। लक्ष्मी विलास बैंक का हैडकुआटर चेन्नई दे विच, लक्ष्मी विलास बैंक का हैडकुआटर चेन्नई दे विच है और 1926 दे विच इसनूं बनाया गया सी। ठीक है जी। अच्छा, बाकी ऑप्शनस दे विच अगर आप गल करते हैं बैंकिंग के रिलेटेड हैडकुआटर ही डिस्कस कर लेंगे हैं। चेन्नई दे विच होर किहड़ा बैंक का हैडकुआटर है? इंडियन बैंक का हैडकुआटर भी कित्थे है? चेन्नई दे विच, याद रखना है। मुंबई दे विच तां हर एक नूं पता ही होएगा, फॉर एग्जाम्पल SBI का हैडकुआटर मुंबई दे विच है। ज़्यादातर बैंक का हैडकुआटर HDFC हो गया, एक्सिस हो गया, ICICI हो गया, येस बैंक हो गया, इन्हां दे हैडकुआटर कित्थे ने? मुंबई दे विच। न्यू दिल्ली दे विच एक इंपोर्टेंट बैंक का हैडकुआटर है पंजाब नैशनल बैंक का। पंजाब नैशनल बैंक का हैडकुआटर न्यू दिल्ली दे विच है। इस तो इलावा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का हैडकुआटर न्यू दिल्ली दे विच है। एयरटेल बैंक का हैडकुआटर एयरटेल पेमेंट बैंक का हैडकुआटर भी न्यू दिल्ली दे विच है। कोलकाता की अगर आप गल करिए इलाहाबाद बैंक वैसे तो इलाहाबाद UP दे विच है, पर इलाहाबाद बैंक का हैडकुआटर कित्थे है? कोलकाता दे विच। इत्थे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इलाहाबाद बैंक का हैडकुआटर कोलकाता दे विच है। वडोदरा गुजरात दे विच है और इत्थे जिहड़ा हैडकुआटर है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हैडकुआटर कित्थे है? वडोदरा गुजरात दे विच। नेक्स्ट है इंडियन नेवी इंडक्ट्स 2 अमेरिकन ड्रोन्स ऑन लीज एट INS Rajali in Tamil Nadu. What is the name of the drone? इंटरस्टिंग क्वेश्चन है, न्यूज़ काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगी कि इंडियन नेवी ने की करिया 2 ਜਿਹੜੇ अमेरिकन ड्रोन्स ने उन्होंने लीज़ ते लिया, उन्होंने बाय नहीं किया, कहांगे लीज़ ते लिया कि उन्होंने टेस्ट किया जाएगा कि ये साडे लिए हेल्पफुल है या नहीं है। अगर इन्होंने हेल्पफुल देखा जाता है तो फाइनली इन्होंने फिर बाय कर लिया जाएगा। तो उस ਜਿਹੜੇ ड्रोन्स ने कित्थे रखे गए ने वो INS रजाली दे विच। INS रजाली कित्थे है? तमिलनाडु दे विच है। इंडियन नेवल शिप रजाली कित्थे कमीशनड है? तमिलनाडु दे विच कमीशन है और ड्रोन्स का नाम है सी गार्जियन।
ठीक है जी, याद रखने। सर्विलेंस ड्रोन्स ने ये याद रखने कि फाइटर ड्रोन्स नहीं ने, सर्विलेंस ड्रोन्स ने। अच्छा, DRDO द्वारा ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਰਤ ਡਰੋਨਸ ਨੂੰ DRDO ਦੁਆਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, DRDO ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਘਾਤਕ ਡਰੋਨਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। DRDO ਦੁਆਰਾ ਘਾਤਕ ਡਰੋਨਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਾਤਕ ਡਰੋਨਸ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਪਲਸ ਅਟੈਕ ਡਰੋਨਸ ਨੇ। ਅਟੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਪਨਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ DRDO ਦੁਆਰਾ ਘਾਤਕ ਡਰੋਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੀਰੋਨ ਡਰੋਨਸ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੀਰੋਨ ਐਸੇ ਡਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਰੋਨਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਹੀਰੋਨ ਡਰੋਨਸ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚ। ਅੱਛਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਫॉर एग्जांपल ਰਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ USA ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਪਾਚੇ ਔਰ ਚਿਨੂਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? USA ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪਾਈਕ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਅਰਾਦ ਔਰ ਕੈਮਲ ਨਾਮ ਦੀ ਗਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਸ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, LMG ਗਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਲ ਫॉर ट्रांसजेंडर पर्सनस। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਲ ਫॉर ट्रांसजेंडर पर्सनस ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਿਮਾ ਗ੍ਰਹਿ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਕਿੱਥੇ? ਵਡੋਦਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ 2019। ਕਾਫੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਲ ਫॉर ट्रांसजेंडर पर्सनस ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਰਿਮਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਫॉर ट्रांसजेंडर पर्सन ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਵਡੋਦਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਸ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ? 2019 ਦਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ? 2019 ਦਾ। ਤਾਂ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਥਨਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਫॉर मध्य प्रदेश। ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਥਨਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਟ ਦੇ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੋਟਲ 10 ਸਿਟੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 13 ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਡੋਦਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ 12 ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਸ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਟਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਖੂੰਤੀ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਮੁਖਤਾਰ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ। ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚੌਥੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਦੂਸਰੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਰਿਆਣਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਥਨਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਥਨਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਟ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਇਨ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਇਨ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਏ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ
कैलीग्राफी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इलस्ट्रेशन एंड कैलीग्राफी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें बनाया गया डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली द्वारा। किरण रिजिजू की गल करते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने इन्होंने सैकेंड एडिशन लॉन्च किया फिट इंडिया स्कूल वीक प्रोग्राम का। फिट इंडिया स्कूल वीक प्रोग्राम का सैकेंड एडिशन लॉन्च किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ फिट इंडिया मिशन डायरैक्टर एकता बिश्नोई। इत्थे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज़ द डायरैक्टर ऑफ फिट इंडिया मिशन। फिट इंडिया मिशन के डायरैक्टर कौन ने? एकता बिश्नोई ने, एकता बिश्नोई। नेक्स्ट ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ है, अपने डिस्कस किया सी उमंग ऐप के बारे। उमंग ऐप के बारे आप डिस्कस किया सी कि उमंग ऐप के 3 साल पूरे होए, 3 साल पूरे होने करके इसनों की कह सकते हैं कि इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया गया। इंटरनेशनल वर्जन 8 डिफरेंट कंट्रीज़ के विच लॉन्च किया गया, जिस दे विचों USA हो गया, UK हो गया, नीदरलैंड हो गया। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं UAE हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सिंगापुर हो गया, होर भी काफ़ी 2 कंट्रीज़ होर सी, न्यूजीलैंड सीगा एक होर सी, ठीक है। इन्हां दे विच इसनूं लॉन्च किया गया। हुण इस तो इलावा एक अवार्ड भी बनाए गए ने, उमंग अवार्ड्स। उमंग अवार्ड्स के नाम तो पहली बार अवार्ड अनाउंस किए गए हैं और उस अवार्ड नूं दिता भी गया, ठीक है, कला बनाया नहीं गया, अवार्ड नूं दिता भी गया। तो किसने बनाया? रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद द्वारा अनवील किए गए हैं, अनाउंस किए गए हैं, जो कि इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने, इस तो इलावा IT मिनिस्टर ने और लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री भी है, पटना बिहार तो लोक सभा MP ने, ठीक है। तो किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन नूं इस अवार्ड दे नाल सन्मानित किया गया? EPFO नूं, EPFO एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। PF प्रोवाइड करती है जी ऑर्गेनाइजेशन, उसनों यह अवार्ड दिता गया। अवार्ड किस नाम तो दिता गया? अवार्ड दिता गया प्लैटिनम पार्टनर अवार्ड। प्लैटिनम पार्टनर अवार्ड, प्लैटिनम पार्टनर अवार्ड के नाम तो इस अवार्ड नूं दिता गया, ठीक है। अगर EPFO की गल करते हैं तो 1952 के विच यह बनाई गई सी, न्यू दिल्ली के विच हैडकुआटर है, न्यू दिल्ली के विच इस दा हैडकुआटर है, ठीक है जी। बाकी ऑप्शंस के बारे फैक्ट्स नहीं डिस्कस करांगे, आप पहले काफ़ी बार डिस्कस किए हुए हैं। नैक्सट चलते हैं, अहमद पटेल। अहमद पटेल एक फेमस पॉलिटिशियन ने, अहमद पटेल एक फेमस पॉलिटिशियन ने, इन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई है। ये किहड़ी पार्टी तो बिलोंग करते सी, ठीक है। इन्हों का नाम वैसे आप ओबीचरीज घट डिस्कस करते होंगे, पर इन्हों का नाम काफ़ी इंपोर्टेंट है। अगर आप गल करते हैं कांग्रेस तो बिलोंग करते सी, कांग्रेस तो बिलोंग करते सी सोनिया गांधी के जिहड़े INS के प्रेजिडेंट कह सकते, INC के प्रेजिडेंट कह सकते हैं, तो जिहड़े सोनिया गांधी ने इन्हां दी स्पैशल लैफ्टिनेंट के रूप के काम करते सी, लिeutenant के रूप के कांग्रेस नूं किसी भी तरीके की कोई भी मुसीबत आती सी तो सब तो पहले नाम अहमद पटेल का लिता जाता सी। सब तो कह सकते हैं जिस तरीके नाल BJP के विच अमित शाह का रोल है, उस तरीके नाल INC के विच अहमद पटेल का रोल सीगा, ठीक है। इन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई है, COVID-19 के कारण इन्हों की डेथ हुई है। कित्थों बिलोंग करते थे? गुजरात तो। पटेल है तो कित्थों बिलोंग करते थे? गुजरात तो, ठीक है जी, याद रखना। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड द सार्क प्लैनिंग मिनिस्टर्स मीटिंग 2020। सार्क जिहड़ा ग्रुप है साउथ एशियन एसोसीएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसीएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन ग्रुप है। ग्रुप की गल करते हैं तो 8 मैंबर कंट्रीज़ ने, ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं हैडकुआटर की तो नेपाल दे विच, नेपाल काठमांडू के विच हैडकुआटर है। आई थिंक 1985 के विच इसनूं बनाया गया सी। हुण इसकी पहली मीटिंग है, प्लैनिंग मिनिस्टर्स की पहली मीटिंग है। अगर आप गल करते हैं सार्क की वैसे तो मीटिंग्स होंदियां रहिंदियां ने, पर प्लैनिंग मिनिस्टर्स की पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई पाकिस्तान द्वारा। पाकिस्तान द्वारा सार्क की प्लैनिंग मिनिस्टर्स की पहली मीटिंग नूं ऑर्गेनाइज किया गया। इस दे बारे डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। इस तो इलावा एक न्यूज़ अर्जेंटीना के रिलेटेड है, एक ओबीचरी है, वह भी डिस्कस करांगे। अफगानिस्तान रिलेटेड आप डिस्कस करना है। सब तो पहले पाकिस्तान की सार्क की पहली मिनिस्टर की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसकी थीम सी शेपिंग सार्क विजन 2030। शेपिंग सार्क विजन 2030। 2030 का मतलब यानी कि SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जिथे 2030 आ गया, SDG हमेशा याद रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए प्रमोट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, टारगेट अचीव करने के लिए
इस दी थीम रखी गई सी। ठीक है, इस तो इलावा इंडिया वालों भी किसी ने पार्टिसिपेट किया है, तो किसने पार्टिसिपेट किया? नीति आयोग। नीति आयोग CEO ने अमिताभ कांत ने CEO, क्योंकि प्लैनिंग मिनिस्टर्स की मीटिंग सी, अपने इंडिया का जो प्लैनिंग कमीशन सीगा उसनूं खत्म करके नीति आयोग बनाया गया सी, तो इस करके नीति आयोग वालों CEO ने इस दे विच वर्चुअली पार्टिसिपेट किया अमिताभ कांत द्वारा। सार्क के बारे एक फैक्ट हमेशा याद रखना कि इसनूं ढाका बंगलादेश के बनाया गया सी, पर इसका हैडकुआटर नेपाल काठमांडू के विच है। 1985 के इसनूं बनाया गया 8 मैंबर कंट्रीज़ ने। नैक्सट है अफगानिस्तान के रिलेटेड अगर आप गल करते हैं, मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई सुब्रमण्यम जयशंकर द्वारा, पार्टिसिपेट किया गया, विजिट की गई सुब्रमण्यम जयशंकर द्वारा, और अनाउंस किया गया 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। उस इन्वेस्टमेंट के विच एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी है शहदूत डैम, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे होर भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स ने, पर सब तो इंपॉर्टेंट रहेगा शहदूत डैम, कि शहदूत डैम बनाया जाएगा अफगानिस्तान दे विच। इंडिया शहदूत डैम बनाएगा फॉर प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जिहड़ा कि अपना गोल है हर घर स्वच्छ पानी की अगर आप गल करते हैं, हर घर जल का जिहड़ा गोल है 2024 का, उस दे नाल ही इंडिया तो इलावा अफगानिस्तान के विच भी इस गोल नूं इनीशिएटिव नूं लिता गया, शहदूत डैम बनाया जाएगा। ठीक है, अगर इंडिया की गल करते हैं तो हर घर जल प्रोवाइड करवाने वाली किहड़ी स्टेट है? गोवा। याद रखने अपना गोल कितना है? 2024 है, ये भी याद रखने। अच्छा, अगर आप गल करते अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के विच इस तो पहले भी कि डैम बनाया गया इंडिया द्वारा, बनाया गया सलमा डैम। पुराना है, अगर आप गल करते हैं काफ़ी टाइम हो चुका है, पर इंपॉर्टेंट रहेगा कि सलमा डैम भी अफगानिस्तान के विच इंडिया ने बनाया सी। अफगानिस्तान की पार्लियामेंटरी बिल्डिंग है, जिहड़ी पार्लियामेंटरी बिल्डिंग है, उसनूं भी इंडिया ने बनाया सी। अगर आप इंडियन पार्लियामेंटरी बिल्डिंग की गल करते हैं तो उसनूं भी बनाया जा रहा है 2022 के विच कंप्लीट कर दिता जाएगा। किहड़े ग्रुप नूं उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जित्तिया सी, बिडिंग जीती सी, तो टाटा ग्रुप ने बिडिंग जीती सी, ये याद रखनी है। ठीक है जी। नैक्सट है अर्जेंटीना की एक फेमस फुटबॉल प्लेयर, इन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई है। काफ़ी फेमस और काफ़ी अच्छा नाम अगर आप गल करते हैं प्लेयर से डिएगो मैराडोना फुटबॉल प्लेयर। अगर कोई फुटबॉल पसंद करता तो उन्होंने इसका नाम पक्का सुनया होगा। और लियोनल मैसी का नाम हर किसी ने सुनया होगा। तो लियोनल मैसी को बनाने वाला जो परसन है वो है डिएगो मैराडोना। लियोनल मैसी के मैंटोर कह सकते हैं, लियोनल मैसी के गुरु कह सकते हैं। तो कौन से? डिएगो मैराडोना। काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर से, फुटबॉल प्लेयर से। बेसिकली अगर आप गल करते हैं 1986 की, तो 1986 का वर्ल्ड कप जितया जो फीफा का वर्ल्ड कप अर्जेंटीना द्वारा जितया गया सी, तो उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा सीगा डिएगो मैराडोना का। ठीक है जी, ये याद रखना। नैक्सट है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? किहड़ी स्टेट दे विच है? यूपी दे विच है। बेसिकली यूपी द्वारा जिहड़ा अयोध्या एयरपोर्ट का नाम अनाउंस किया गया कि यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने की अनाउंस किया कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम चेंज करके असी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट रखांगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट रखा जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है। इस तो इलावा अगर यूपी की ही गल करते हैं, आप अज की स्टेट यूपी टारगेट कर लेना है। यूपी के बारे जिन्नी भी न्यूज़ ने डिस्कस करांगे पिछले 2 मंथ के या पिछले 4 मंथ के जी भी न्यूज़ रही ने यूपी रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल यूपी की गल करते हैं तो यूपी ने प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन लॉन्च की थी। यूपी ने 800 किलोमीटर हर्बल रोड अनाउंस की सी। यूपी ने भोग योजना रिसेंटली अनाउंस की। काउ स्लोटर एक्ट नूं यूपी द्वारा अमेंड किया गया। काउ सैस भी लगाया गया, गऊ सैस भी यूपी द्वारा लगाया गया। अच्छा, काउ की गल आई है तो काउ कैबिनेट बनाई गई है MP द्वारा। काउ कैबिनेट MP द्वारा बनाई गई है। काउ हॉस्पिटल कित्थे बनाया गया? असम दे विच। काउ हॉस्पिटल असम के डिब्रूगढ़ दे विच बनाया गया। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, यूपी की ही गल कर रहे हैं तो यूपी की गल करते हुए जेवर एयरपोर्ट याद रखना है। यूपी के विच जेवर एयरपोर्ट जो बनाया जा रहा है जूरीच स्विट्जरलैंड एयरपोर्ट के नाल हेल्प के नाल बनाया जा रहा है। ठीक है जी। इस तो इलावा PM स्वनिधि स्कीम की इंप्लीमेंटेशन के रिसेंटली यूपी ने टॉप किया सी। मनरेगा के भी इंप्लीमेंटेशन के टॉप किया सी यूपी ने। ठीक है जी। रिसेंटली अनाउंस किया गया कि इंटरनेशनल बर्ड फेयर है जोड़ा ऑर्गेनाइज किया जाएगा गोरखपुर यूपी के। गोरखपुर यूपी के लेक की गल करते हैं। लेक सी, अच्छा लेक का नाम कमेंट बॉक्स में भी तुसीं दसना।
ठीक है। वैसे लेक का नाम मेरे माइंड चो स्किप कर रहा है, रामगढ़तल, रामगढ़तल लेक यूपी ਦੀ, ठीक है जी। इस तो इलावा खुशीनगर एयरपोर्ट ਨੂੰ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिता गया ਸੀ। इस तो इलावा यूपी रिलेटेड होर की याद आंदा है, यूपी रिलेटेड ऑपरेशन दूराचारी याद रखना है। इस तो इलावा सिमिलरली वूमेंस के लिए हैल्प डेस्क यूपी द्वारा हर पुलिस स्टेशन के विच, एंटी थैफ्ट पुलिस स्टेशन यूपी द्वारा अनाउंस किए गए सी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं वल्चर कंजरवेशन सेंटर भी यूपी के बनाया जा रहा है, यूपी के गोरखपुर के विच। इस तो इलावा यूपी के विच ही नौगढ़ रेलवे स्टेशन सीगा जिहड़ा, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम भी चेंज किया गया सी। यूपी काफ़ी टाइम तो अगर आप गल करते हैं नेम चेंजिस करने के विच काफ़ी अगे है। इलाहाबाद का नाम चेंज किया सीगा यूपी ने, प्रयागराज किया गया सी। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रख दिता गया सी, ठीक है। एक होर इंपोर्टेंट रेलवे स्टेशन सीगा, उसका नाम भी चेंज किया गया सी यूपी के विच ही, वो मेरे माइंड चो स्किप कर रहे हैं, नैक्सट टाइम आप कदे डिस्कस कर लाँगे। काफ़ी इंपोर्टेंट फैक्ट सीगे, जिन्नी भी न्यूज़ आप यूपी रिलेटेड पिछले 2 या 3 महीनों के विच डिस्कस कीतियां ने, सारियां आपने रिवाइज कीतियां ने, ठीक है। इसनूं नोट कर लियो, याद रखना। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो काइंडली अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।